Hello and good morning everyone. In the previous lecture, you know that we have taken the different aspects of quantum numbers as well as the shape of s orbital as well as p orbital. अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे different types of d orbitals and their orientations as well as their energy. So I will talk about that. So now let's see here d orbitals. आपको पता है d orbital जो होते हैं they are of 5 types. You know that. And these 5 types are dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So these 5 types of orbitals are there and they are known as d orbitals. All these 5 types of orbitals dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. All these 5 types of d orbitals, they are also known as degenerate. They are known as degenerate orbitals. Now see, the meaning of the word degenerate means having equal energy. ह्या 5च्या 5 पूर्ण ऑर्बिटलची एनर्जी जवळपास सेम असते. मीन्स दे आर हॅव्हिंग नियरली द सेम एनर्जी. दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ degenerate orbital. So these 5 types of d orbitals are there which are having the same energy. Hence electron can enter in any of the d orbital. I mean dxy, dyz, dzx, dx square minus y square as well as dz square. अभी हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. Now you can see dxy, dyz, dzx या तिघांमध्ये एक गोष्ट कॉमन अशी आहे. काय तुम्ही मला सांगाल का? येस, इफ यू सी प्रॉपरली देअर ओरिएंटेशन एक्स अँड वाय एक्सिसच्या मध्ये, सो देअर लोब्स, इनको हम लोग बोलते हैं लोब्स, एंड देयर लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस. सो अगर देखा जाए तो यह है एक्स वाई एक्सिस, तो इसका नाम हो गया डी एक्स वाई. जो दूसरा वाला लोब यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑर्बिटल, वो है डी वाई जेड. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये है वाई ऑर्बिटल, वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस. तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई जेड. एंड नाउ यू कैन सी द लोब्स ऑफ दिस डी ऑर्बिटल, दे आर in between the axis. Same in this case of dzx. Z axis is here and x is here. So now again you can see the lobes are again in between the axis. तर या तिघांच्या मध्ये जर तुम्ही बघितलं प्रॉपरली तर तुम्हाला समजेल सगळेच्या सगळे जे आहेत लोब्स ते आहेत इन बिटवीन द ॲक्सिस. That's why they are all the same type of orbitals and they are known as a dxy, dyz and dzx. So I will write here their lobes. Yes, their lobes are in between the axis. Okay. And now the next one is here, और वो है dx square minus y square and dz square. अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपरली तो इनके जो लोब्स हैं ये है along the axis. बघा ना, इथे हा आहे x axis आणि हा आहे y axis. आणि जर लोब्स तुम्ही बघितले प्रॉपरली तर ते काय आहेत, ते आहेत along the axis. So ये इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका नाम है डी जेड स्क्वायर. नाउ वी कैन सी इन दिस केस बोथ द लोब्स ऑफ दिस d orbital
they are along the z axis, so that's why its name is dz square. तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, their lobes are along the axis. So in this way there is there are 5 types of d orbitals और ये है इनका proper orientation. You know that the meaning of the d is diffuse, so all they are nothing but diffuse. Okay, now when electron will enter in any of these d orbitals, तो as I told you, first electron अगर वहां पे enter करेगा तो first will be here, second will be here, third will be here, fourth will be here, fifth will be here. ठीक है, and if 6 electron will enter here, 6, 7, 8, 9 and 10. So you know that maximum number of electrons in the d subshell क्या होते हैं? They are nothing but 10 electrons. कैसे आ लेते? क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यू नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू, ये है इनका स्पिन. अभी ये एंट्री कैसे होता है ऑर्बिटल्स का, अभी हम देखते हैं. So for that I told you in the previous lecture we have to see 3 important aspects. Now I will cover that. First of all, I will suggest you to write all this and draw these diagrams properly in your notebooks. Okay? Okay, then the next topic, these are the 3 important aspects we should know compulsory. इसमें से कम आपको 2 आएंगे एग्जाम में, so they are very important. So I will write here very important points. Okay, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस डायग्राम्स में मैंने सिर्फ 2 निकाले थे एक्सिस. अगर सोचिए इस तरीके से ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, जो होगा थर्ड वाला एक्सिस ये आएगा कुछ इस तरीके से. सो दिस 3 एक्सिस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस 3 एक्सिस. ओके, तो वहां पे तीसरा भी एक्सिस यहाँ पे मतलब हो सकता है मौजूद वो डायग्राम्स में. ओके, नाउ हियर अभी हम देखेंगे ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे हंट्स रूल की. सो हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, नाउ द रूल स्टेट्स दैट व्हेन several orbitals of same types and energies are available, then electrons will enter all the orbitals singly and then pairing takes place. Very simple. बुक में भी दिया है डेफिनेशन, ये भी है और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये भी है. यू कैन डू एनी वन डेफिनेशन, बट आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन.
when several orbitals of same type and same energies are available, then electrons will enter all the orbitals singly and then pairing takes place. Now see, before that let me tell you here, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 मतलब फर्स्ट शेल में आएगा 1s ऑर्बिटल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 सेकंड शेल मध्ये येतील 2s आणि 2p, थर्ड शेल मध्ये येतील 3s 3p and 3d, फोर्थ शेल मध्ये येतील 4s 4p 4d and 4f. ये है k वाला शेल, ये है l वाला शेल, m and n. अभी आपको ये अच्छे से लर्न हो गया होगा. अभी लेट मी टेल यू, आपको मैंने बोला था कि s ऑर्बिटल चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम कितने आएंगे 10 और f में आएंगे 14. ठीक है, तो अभी हमको इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना होगा. आपको पता है कि 1s के लिए होता है एक बॉक्स, 2s की अगर हम बात करते हैं तो 2s के लिए मतलब s कोई भी हो तो इसमें एक ही बॉक्स आएगा. फिर 2p के लिए आएंगे 3 बॉक्सेस, यहाँ पे फिर 2s है, ये है 2px, ये है 2py और फिर है 2pz, ये है 1s. इथं s साठी पुन्हा एकदा एक बॉक्स, 3p साठी पुन्हा काय येतील 3 येतील बॉक्सेस. सो हियर विल बी 3s 3px 3py एंड 3pz और बाद में यहाँ पे 3d भी आएगा. 1 2 3 4 5 और वो कौन से होंगे, नो दैट ये है 3d. ऑब्वियसली dxy dyz dzx dx square minus y square as well as dz square. सो इस तरीके से अभी हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करना है. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन चा एटॉमिक नंबर आहे 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता आपल्याला लिहायचंय. आप मतलब अब तक आपने 10th में पढ़ा था कि ऑक्सीजन विल हैव यस 2 इलेक्ट्रॉन्स in the first shell and 6 electrons in the next shell. या फिर अगर हम बात करेंगे सोडियम की तो आपको पता है उसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो आपने इसको 281 कुछ शायद इस तरीके से लिखा होगा. लेकिन अभी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और वो भी प्रॉपर तरीके से. क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the shells and subshells is known as electronic configuration. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो अभी यहां पे हमको ये 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने होंगे डिफरेंट शेल्स में, सबशेल्स में. सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा. सो हियर 1s आई विल राइट. तुम्हाला माहिती है, आपको पता है कि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे एंटर, तो यहां पे आएगा फिर 1s2. जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फर्स्ट शेल में, देखिए यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ये शेल भर जाएगा. बाद में आएगा 2s. सो आई विल राइट हियर आफ्टर 1s2 2s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होंगे. फिर हम बात करेंगे 2p. 2p कितना आएगा यहाँ पे, 2 + 2 = 4. ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें से 4 तो हो गए, कितने बचे 4, तो यहाँ पे 4 आएगा. नाउ अभी हंट्स रूल क्या है हम देखते हैं. एज आई टोल्ड यू 1s2 है यहां पे, तो पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होगा विद द स्पिन, अपवर्ड स्पिन, और इसका आएगा डाउनवर्ड स्पिन, इसका आएगा अपवर्ड स्पिन और ये आएगा डाउनवर्ड स्पिन. ये है 2s, 2px, 2py एंड 2pz.
चलो अभी 4 इलेक्ट्रॉन तो प्लेस हो गए प्रॉपरली। अभी हम देखते हैं हमारा हर्ट्ज रूल क्या कहता है। 2p4, अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। When several orbitals of same type and energy, इन तीनों की एनर्जी सेम है, 2px, 2py, 2pz। इनकी एनर्जी भी सेम है, इनका टाइप भी सेम है। टाइप कौन सा हो गया? p टाइप्स। जैसे यहां पे यह ऑल आई मीन dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज वेल एज dz स्क्वायर, ये भी है सेम टाइप ऑफ सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो ठीक उसी तरीके से अभी यहां पे हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करना है हर्ट्ज रूल के हिसाब से। तो ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी आप इसमें फिल करोगे, देन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर हियर। सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आएगा, वो आएगा इस ऑर्बिटल में आएगा, और यहां पे आएगा फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, यहां पे है थर्ड, और फिर यहां पे एक बार अगर तीनों में एक एक आ गया, फिर यहां पे पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। नाउ वी कैन सी, ये है अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लिखा है यहां पे? इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर ऑल द ऑर्बिटल्स सिंगली, सब ऑर्बिटल्स में एक एक आएगा, और फिर क्या होगा? पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर आप इसको लिखते हो 1 2 3 and 4, then this will be wrong। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करना है। ओके, दिस विल बी राइट। ओके, क्योंकि यहां पे जैसे कि मैंने आपको कहा हर्ट्ज रूल के हिसाब से पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और फिर बाद में पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द हर्ट्ज रूल, अंडरस्टैंड? सो हर्ट्ज रूल का ये है स्टेटमेंट, एंड आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई विल से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें से आप आज के लेक्चर्स में सब के सब टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट you just write this definition as well as this explanation। ठीक है, बस आपको अगर आता है 2 मार्क्स के लिए तो आपको लिखने का इसका डेफिनेशन, और ये है इसका एग्जाम्पल। You can give many more examples also, but I will tell you later on। Now the next one is here, और वो है yes Pauli's exclusion principle। Now it states that no two electrons in an atom can have same set of values for all 4 quantum numbers। No two electrons in an atom can have same set of values for all 4 quantum numbers। मुझे लगता है पहले आप एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको वो डेफिनेशन जो है आएगा समझ में। आपको पता है हियर इन दिस केस, यहां पे मैंने टेबल निकाला है, यह है इलेक्ट्रॉन, यह है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और यह है सेकेंड इलेक्ट्रॉन।
इमेजिन करा हेलियम, हेलियम का है एटॉमिक नंबर 2, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो आपको पता है इसको अगर मुझे लिखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन तो वो आएगा 1s2, बिकॉज बोथ दिस इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द s सबशेल, और वो भी कौन सा 1s सबशेल। पहला इलेक्ट्रॉन जब भी एंटर होगा, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन वो आएगा कुछ इस तरीके से, हैविंग अपवर्ड स्पिन, आई मीन इट विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तर पहिला इलेक्ट्रॉन जो असेल ना याचं येईल 1s1 असं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जो भी आएगा ये है इसका नोटेशन 1s1। अभी इसके लिए n, l, m एज वेल एज s का वैल्यूज क्या आते हैं हम देखते हैं। n प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणजे सेल नंबर काय 1, सो n इज इक्वल टू 1। l ची व्हॅल्यू काय येते, ये टेबल मैंने आपको बोला था, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3। ये होता है s, p, d और f। l का वैल्यू 0 होता है जब होता है s ऑर्बिटल, तो यहां पे कौन सा है s, तो s है मतलब l का वैल्यू क्या है 0, तो यहां पे आएगा 0। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था जब l का वैल्यू 0 होगा देन m का वैल्यू भी हमेशा 0 ही होगा। ओके, अब हम बात करते हैं s की। क्या होता है s? स्पिन क्वांटम नंबर। आपको पता है जब भी पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो उसके लिए रहेगा अपवर्ड स्पिन। अपवर्ड स्पिन कुछ इस तरीके से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा +1/2। जब भी होगा अपवर्ड स्पिन तो उसका वैल्यू होता है +1/2, और जब होगा डाउनवर्ड स्पिन उसका वैल्यू होता है -1/2। तो इस तरीके से अभी ये है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नाउ ऑल दैट वैल्यूज आई विल फिल हियर। क्या है n का वैल्यू 1, क्या है l का वैल्यू 0, क्या है m का वैल्यू 0, क्या है s का वैल्यू +1/2। ये है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी हम यहां पे बात करेंगे, यह है 2s2। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा ना इसके लिए रहेगा डाउनवर्ड स्पिन। तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इसका रहेगा 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, n, l, m एंड s। n का वैल्यू क्या आएगा, पहला ही सेल है तो 1 ही आएगा। s यहां पे भी है, इधर भी l का वैल्यू 0 होगा। आई टोल्ड यू जब l का वैल्यू 0 होगा तब m का वैल्यू भी 0 ही होगा। s का वैल्यू क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेगा, इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो वैल्यू रहेगा -1/2। सो हियर वैल्यू विल बी हियर 1, then 0, then 0, and now fourth value is -1/2। लास्ट कॉलम यहां पे लिखा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। क्या है वैल्यू का सेट 1, 0, 0 और यहां पे है +1/2, 1, 0, 0, -1/2। अभी आते हैं हमारे प्रिंसिपल की तरफ। क्या लिखा है वहां पे, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स। ये है पहला वाला इलेक्ट्रॉन और ये है दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। अभी आप चेक करो इन वैल्यूज में 3 वैल्यूज तो कॉमन है, लेकिन फोर्थ वाला वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इसका वैल्यू क्या है +1/2, इसका वैल्यू क्या है -1/2। मतलब किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों वैल्यूज कभी भी सेम नहीं आएंगे। 3 आ सकते हैं जैसे कि यहां पे दिया है, लेकिन फोर्थ वैल्यू हमेशा अलग ही आएगा, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे पहला क्लॉकवाइज तो दूसरा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज द प्रिंसिपल। ओके,
चारों वैल्यू कभी सेम नहीं आएंगे, 3 वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम सेम हो सकते हैं, 3 या फिर 1 या फिर 2, लेकिन चारों के चारों वैल्यू कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ही एटम में कभी भी सेम नहीं आएंगे। दैट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये लिखने का है आपको स्टेटमेंट और यह है इसका एग्जाम्पल। ओके, नोट डाउन प्रॉपरली। Now, the next one, third one, is nothing but above principle. In German, the meaning of the word is, above का मतलब होता है building up. I mean here, building up of orbitals. Now see, this principle is very important. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको लिखना है, बघा या वर्षी आपल्याला बघायचं आहे चॅप्टर. आफ्टर नाउ दिस चॅप्टर वी विल टेक द नेक्स्ट चॅप्टर मॉडर्न पीरियड टेबल. अभी इसमें इस चैप्टर में अगर आपको समझ में आता है कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये आपको इस साल भी और अगले साल में भी काम आएगा. इवन वी हैव द टॉपिक हियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 and elements of group, yes, I think 13, 14, 15 मतलब P block element. म्हणजे विचार करा या वर्षी आपल्याला 4 चॅप्टर बघायचे आहेत. They are based on this concept. Okay, next year also we have the chapter in the 12th D and A block elements, coordination compounds, as well as P block के ग्रुप नंबर 16, 17, 18. सो 12 के 3 और इस साल के ये 3-4 मिलाकर इतने सारे टॉपिक डिपेंड करते हैं इस लेक्चर में, इस लेक्चर के ऊपर. सो काइंडली फोकस हियर नाउ. अबव का मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन्स जब भी एंटर होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स. ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन मतलब घूम रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड, और वो एटम जो है उसने बाहर से कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की है. आई मीन इट्स अ स्टेबल, इट्स इन अ ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट. अगर बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा देन दैट इलेक्ट्रॉन इट विल गो टू एक्साइटेड स्टेट. इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. As I told you in the Bohr's postulates, जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाहर से तो इसमें क्या होगा, ये जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक. लेकिन जब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा इट विल बी स्टेबल. इट इज नोन एज अ ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट. इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर filled up with electrons in order of increasing energies. अभी इंक्रीजिंग एनर्जी का मतलब क्या है, आई विल टेल यू. जिसकी एनर्जी कम होगी ऑर्बिटल्स में वो पहले हम फील करेंगे. अभी इसको कैसे हम करेंगे डिसाइड कि किसकी एनर्जी कम है, तो इसके लिए मैंने लिखे हैं, ये है N+L रूल्स. ठीक है. The electrons enter the orbitals according to N+L value. N+L क्या है? Yes, N is nothing but that principal quantum number, and L क्या होता है? L होता है azimuthal quantum number. N+L का वैल्यू कैसे निकालते हैं I will tell you. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी यहां पे क्या दिया है 3D and 4s. आपको पता है 3D के लिए n का वैल्यू क्या आएगा 3, क्योंकि ये थर्ड शेल है. और मैंने आपको बहुत बार इससे भी पहले बताया है कि L = 0, L = 2,
1 2 एंड 3, ये है S, ये है P, ये है D और ये है F। इधर D है तो L का वैल्यू क्या होगा D के लिए? यस 2। तो N प्लस L का वैल्यू बताओ क्या होगा? 3 प्लस 2 का वैल्यू क्या आएगा? 5। किसके लिए? 3D के लिए। बात करते हैं 4S की। 4S की अगर हम बात करेंगे तो N का वैल्यू क्या है? ये आएगा 4, क्योंकि देखिए ना S है, S के लिए क्या होता है? L इज इक्वल टू 0। चलो हम बात करते हैं L की। N का वैल्यू तो यहां पे है 4, L का वैल्यू यहां पे क्या है? यस 0। तो टेल मी हियर N प्लस L का वैल्यू क्या होगा? 4 प्लस 0 इज 4। Orbitals are filled in order of increasing value of n plus l। जिसका n plus l का वैल्यू कम, ये पहले भरा जाएगा। इसका ज्यादा है तो ये बाद में भरा जाएगा। ठीक है, जिसका पहला मतलब जिसका n plus l का वैल्यू कम होगा जिस ऑर्बिटल का, वो पहले हम भरेंगे और फिर बाद में दूसरा हायर ऑर्डर वाला हम फिल करेंगे। ठीक है, अभी इसके नीचे लिखा है इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन देखो n प्लस एल वैल्यू के बीच में कभी कभी होता है टाई, मतलब दोनों के वैल्यू बिल्कुल सेम है। चलो हम यहां पे एग्जांपल लेंगे। क्या दिया है यहां पे? 3p और क्या दिया है? सॉरी 3d ना, 3d और क्या दिया है? 4p। n एंड l का वैल्यू, इधर भी n एंड l का वैल्यू। टेल मी यार यहां पे n का वैल्यू क्या होगा? 3। d के लिए क्या होता है l का वैल्यू? देखिए d कहां पे? ये d है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। d का वैल्यू क्या है यहां पे? 2। सो 3 प्लस 2 क्या हुआ? n प्लस l का वैल्यू 5। अभी बात करते हैं यहां पे क्या है? यहां पे n का वैल्यू 4, क्योंकि क्या है यहां पे? 4 है प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर, तो यहां पे ये है 4। p का वैल्यू क्या है? 1। सो 4 प्लस 5, n प्लस l का वैल्यू यहां पे क्या हो गया? ये भी इधर हो गया 5। देखिए यहां पे टाई हो गया, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है 5 5, बोथ वैल्यूज आर सेम। तो ऐसे में ये क्या क्या बोल रहा है रूल? इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, then the orbital with lower value of n will be filled first। जिसके लिए n का वैल्यू, n मतलब जानते हो ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके लिए n का वैल्यू लोअर होगा वो पहले भरा जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं 3d की तो उसके लिए वैल्यू क्या आया है? 5। अगर हम बात करते हैं 4p, इसकी वैल्यू क्या है? ये भी आया है 5। दोनों के वैल्यू बिल्कुल टाई हो गए, तो ऐसे में कौन सा पहले भरेंगे हम? एज पर द सेकेंड रूल 3d। और वैसे भी एक कॉमन सेंस है क्या कि अगर यहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल आएगा, फिर आएगा सेकेंड शेल, फिर थर्ड शेल, तो आपको सोचना यह है कि पहले कौन सा आएगा? थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा? थर्ड आएगा, तो इसलिए पहले 3d करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब दोनों n प्लस l वैल्यू के बीच में टाई होगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम है। अदरवाइज अगर n प्लस l वैल्यू, इसकी है वैल्यू 3d और इसकी वैल्यू कौन सी है? 4s। ठीक है, अभी 3d जो है ये बाद में भरा जाएगा और 4s जो है ये पहले भरा जाएगा। आपको पता है कैल्शियम का आपने लिखा होगा एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 20। तो आपने इसको लिखा होगा 2882 और आपने सोचा होगा तब क्या कि अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और हमें पता है पहला मतलब बाय द फॉर्मूला 2n², अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो आपको पता है कि K L M N, इसके वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 1, यह है n इक्वल टू 2, यह है n इक्वल टू 3 और यह है n इक्वल टू 4। राइट, तो ये है 4 वैल्यूज,
मतलब ये 4 है ऑर्बिट नंबर्स। तो 2n² के हिसाब से तो यहां पे ये 2n² का फॉर्मूला हमने यूज किया, तो क्या आएगा 2 इंटू 1², तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 2 इंटू 2², यस क्या आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड में कितने आएंगे, क्या स्क्वायर है 3 का, यस 9 इंटू 2 क्या आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हाला प्रश्न पडला असेल त्यावेळेस की बघ पहिल्या शेलमध्ये आहेत 2, ठीक आहे, दुसऱ्यामध्ये आहेत 8, तिसऱ्यामध्ये किती आहेत 8, मग इथे पूर्ण का नाही भरले, दैट आई विल टेल यू नाउ, यू नो दैट। तो पहले यहां पे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो इसका कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट आई विल टेल यू, ओके। तो देखिए अभी यहां पे यह है अबव प्रिंसिपल, और ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक तरीका मैं आपको बोलूंगा अभी। पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट डाउन कर लो। इससे पहले मैं आपको कैल्शियम का चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर है 20, तो पहले आएगा 1s2 2s2 2p, p मतलब तर मॅक्झिमम 6 इलेक्ट्रॉन येतील, 6 आएंगे इलेक्ट्रॉन, सो यहां पे आएगा 2p6, देन 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 2 और 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 12 प्लस 6 में यहां पे हो गए 18। 3p के बाद में कौन सा आएगा, 3p के बाद में क्या आना चाहिए, 3d आएगा क्या, नहीं, देखिए तो पहले कौन सा आएगा 3d, और 4s में पहले 4s आएगा। क्यों, आई विल टेल यू व्हेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम हियर। तो यहां पे 3p के बाद सीधा 4s आएगा, और ये 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 6 और 2, ये ना सेकंड लिखा है यहां पे, तो 6 और 2 यहां पे कितने हो गए 8, और यहां पे तीसरी शेल में देखिए ये लिखा है 3 3, यहां पे भी आएंगे 8, और फोर्थ शेल में आएंगे 2, तो इस तरीके से लिखा 2 8 8 2। 3d यहां पे पहले नहीं भरेगा क्योंकि यहां पे 3d की एनर्जी क्या है, ज्यादा होती है। 4s की एनर्जी कितनी है, कम है। क्या है 4s का वैल्यू n+l का 4, क्या है 3d का वैल्यू 5, इसलिए पहले क्या भरेंगे 4s भरेंगे। तो इस तरीके से होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पहले आप नोट डाउन कर लो ये सब बातें, और चाहे तो ये एग्जांपल ये यहाँ पे इसके नीचे आप लोग लिख सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन। Now here I will tell you now how to fill the different types of orbitals. अगर ये डायग्राम